ਤੇ 10 ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਏ। 25 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। 25 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। 26 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਛਿਨ ਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਿਤਨੇ ਕਸਬੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ETC ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸੀ, ਨੀਤੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 6.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਸੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ 6.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹ ਜੋ ਖਾਸ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, 6.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ETC ਚੈਨਲ ਦੇ ਜੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ETC ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਜੋ ਗਾਲਬਨ 186 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ। ਇਹ 6.5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 22 ਮਕਬੂਲ ਰੋਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਚੌਕ, 10 ਗਾਲਬਨ 8 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 9 ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਪਰ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਬਨ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।
बोल चुका। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। करीबन 6.5 मिनट में मुझे आपको ये बताना है कि जो करिश्मा हुआ था वो क्या था। ये आप बीती की एक सही दास्तान है जिसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हैं, फोटोग्राफ्स हैं, नेगेटिव्स भी हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स भी अपनी एक ही आवाज़ में बोल रहे हैं। जो करिश्मा हुआ था इसके बारे में ही मैं बताऊंगा क्योंकि समझ आ रहा है। वो दिन था May 5, 2002। मुझे यहाँ मेरे परिवार के लोग उठा करके ले आए थे। कभी थोड़ा चल सकता था, कभी फिर से उठाया जाता था, कभी कोशिश करता था कि मैं खुद ही चल के पहुँचूँ, लेकिन ये मुमकिन न रहा और बाद में हमें उठाकर ही ले जाया गया। आप यहाँ अकाल तख्त जो देख रहे हैं, इसके करीब 2 निशान साहिब जो हैं, उसके आगे जरा राइट में आप टर्न लोगे तो वहाँ सरदार विक्रम सिंह की याद में एक केबिन बनी हुई है और ये केबिन में मेरा पाठ हुआ था और उसमें लकड़ी का फर्नीचर थोड़ा ज़्यादा है। और सरदार विक्रम सिंह जो लद्दाख के हीरो थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी और 22 नवंबर 1963 में वो लड़ते लड़ते मारे गए थे। ही इज़ नोन एज हीरो ऑफ लद्दाख। मैं अंदर गया और केबिन में मैं लेटा हुआ था और लेटे लेटे मैं ये सुन रहा था और 8:30 बजे ये पाठ जब शुरू हुआ तो मुझे अजीब से वाइब्रेशंस महसूस होने लगे थे। मैं बड़ी श्रद्धा से गया था उस वक्त जब गया था तब, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने और सरदार केसर सिंह साहब जो है सूरत में, जो होटल इंडस्ट्रियलिस्ट तो हैं ही गुरु कृपा से, लेकिन वहाँ के उजना सूरत गुरुद्वारा के प्रधान भी हैं, उनसे भी मैंने काफ़ी जानकारी मूल मंत्र के बारे में, सिखिज़्म के बारे में और गुरु के बारे में प्राप्त की थी। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो हमने बड़ी श्रद्धा से वहाँ पाठ सुना। आपको मालूम है कि 7.5 घंटे के बाद शायद वो सुखमनी साहिब जी का पाठ शुरू होता है और जैसे ही वो पाठ शुरू हुआ हमें जो वाइब्रेशंस महसूस होते थे, इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड द वेव्स ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी वेव्स मेरे शरीर में प्रवेश करने, इसलिए मेरी धर्मपत्नी को कहा कि तुसी मेरे से गल नहीं करो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मैं ये पाठ काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। उसमें हिंदी उर्दू के अल्फाज भी होते हैं तो मैं उसके मतलब भी समझने लगा था। जैसे ही सुखमनी साहिब का पाठ आगे बढ़ा और भी मुझे एनर्जी वेव्स मिले और ये जो दाहिना कान जो बंद था और डॉक्टरों ने ऑडियोग्राम रिपोर्ट्स में कई अलग अलग लेबोरेटरीज के रिपोर्ट हैं लिख के दिया है कि आप जिंदगी में कभी भी ये कान से नहीं सुन सकोगे, क्योंकि कान के नर्व्स जो हैं वो डेड हो चुके हैं कैंसर की वजह से और हड्डी कई जो रचना है वो भी ख़त्म हो गई है। जैसे वो पाठ आगे बढ़ा हमने और भी एक करिश्मा महसूस किया। पता नहीं मेरी बेटी को क्या ख्याल आया, मैं चौकड़ी मार्ग पर उस वक्त बैठ गया था, इसलिए बेटी सोच रही थी कि पापा देखने में अच्छे लगते हैं, मम्मी के पास बैठे हैं, तो वो तो एक मेमोरी पिक्चर लेने जा रही थी, उसका इरादा और कोई था नहीं। हमें तो पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और ये पाठ और आगे बढ़ते ही वहाँ से एक अचानक एक रोशनी हुई, एक ज्योत ऐसे ही प्रकट हो गई और थोड़ी वाइब्रेट होने के बाद वो स्टेडी भी हो गई। फिर वो मेरे पास आने लगी, जिसके फोटोग्राफ हैं, नेगेटिव हैं, और मेरे शरीर में ये उंगली पर प्रवेश कर गई। यहाँ से उसके 2 हिस्से हुए थे और आगे बढ़ते बढ़ते ये शरीर में ऊपर कुछ वेव्स ऑफ एनर्जी बॉडी, ये बिल्कुल पर्सनल प्राइवेट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। आपको भी अलग सा होगा, यही नहीं कि यही हो, लेकिन ये जब एनर्जी वेव आगे बढ़ते गए, ये कान जो था
जो 5 साल से बंद था, डॉक्टर कहते थे आप कभी नहीं सुन पाओगे, वो सुखमनी साहिब का पाठ सुनते सुनते ये कान खुल गया। आज भी ये कान खुला हुआ है और मैं कथा कीर्तन एंजॉय करता हूँ। जैसे ये पाठ आगे बढ़ता गया, फिर और भी एक अजीब सी बात हमने महसूस की। जो जोत आगे बढ़ी थी, मेरी बेटी ने 5-6 फोटो निकाले, इसमें से एक फोटो में ये जोत आप देख सकते हैं। आगे ये सरदर्द मुझे रहता था, यहाँ जो कैंसर का ट्यूमर है वो आज भी बना हुआ है, लेकिन अभी वो कैंसर का नहीं है, सिर्फ ट्यूमर है। जैसे ये मोल होता है, वो भी एक ट्यूमर है जिसको अंग्रेजी में बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। कैंसर का ट्यूमर हो उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो अखंड पाठ के पहले के रिपोर्ट कहते हैं कि मैं कैंसर से खत्म हो जाऊंगा। अखंड पाठ के बाद के रिपोर्ट कहते हैं कहीं शरीर में कैंसर है नहीं। ये मैंने दावा नहीं करना है, ये मुझे कुछ भी नहीं क्लेम करना है, ये मेडिकल रिपोर्ट्स अपने आप बोल रहे हैं। और आज तो मेरे जो डॉक्टर जो थे कैंसर स्पेशलिस्ट, चीफ कैंसर स्पेशलिस्ट, उन्होंने लिख कर दिया है, जो मैंने यहाँ पढ़कर भी उस दिन सुनाया था कि जब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, डॉक्टर के सीसा कहते हैं कि वासु भारद्वाज को कैंसर हुआ, इसलिए हम अगस्त 2001 से उन्हें कीमोथेरापी दे रहे थे। 6 कीमोथेरापी फेल हुई थी, यहाँ होल का निशान भी बना हुआ है। लेकिन जब से वो हरमिंदर साहब से वापस आए हैं, हम तो यहाँ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की तैयारी करते थे, लेकिन जब से वो हरमिंदर साहब जाकर का अखंड पाठ अरदास करके वापस आए हैं, तब से उनके शरीर में हमने जहाँ जहाँ खोज चलाई, हमें कहीं भी कैंसर देखने को नहीं मिला। इसलिए हमने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ड्रॉप कर दिया है और वासु भारद्वाज एक तंदुरुस्त शख्स की तरह कोई भी तनावपूर्ण सिचुएशन में कोई भी काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आंखों के चश्मे थे वो भी कम हो गए। और आप देख रहे हैं मैं 64 साल का हूँ, आई एम 64, लेकिन मेरी गड्डी रिवर्स में जा रही है एंड आई एम एजिंग यूथफुली। और ये गुरु कृपा ही है। कृपा करके आप इसको चमत्कार नहीं कहिएगा, ये चमत्कार नहीं है, ये गुरु कृपा है। और मेरे पर जो गुरु कृपा हुई है, इससे बढ़कर भी गुरु कृपा किसी पर भी हो सकती, आप पर भी हो सकती है। और अरदास सुनने के लिए तो गुरु बैठे ही हैं। जैसे कबीर ने भी कहीं कहा है कि आप दिल से अरदास करो तो आप सुन सकते हैं, अरदास गुरु तक पहुंच भी सकती है। कबीर कहते हैं मस्जिद मुल्ला बांग पुकारे, क्या मेरा साहिब बहरा है? चींटी के पाँव में नुपुर बाजे, वो भी मेरा साहिब सुनता है। तो ये अरदास तो डॉक्टर भी आज करने लगे, जो मुझे ट्रीट कर रहे थे गुरुवाणी, वो भी पढ़ने लगे हैं। मरीजों को ये भी सलाह देते हैं, पढ़ाई के मुताबिक आपके दवा देते हैं, लेकिन आप हरबिंदर साहब जा कर के वहाँ अखंड पाठ और अरदास करोगे तो आपको भी जो वासु भारद्वाज के साथ हुआ, ऐसी इससे भी बढ़कर गुरु कृपा हो सकती है। यही एक छोटा करिश्मा आपको भले लगे, बात वैसे तो छोटी है, कहानी छोटी है, लेकिन इसके पीछे जो बात छुपी हुई है वो बहुत ही बड़ी है। और ये ज्ञान मैंने मस्कीन जी के कैसेट्स, वीडियो सीडी सुनकर पाया है। और आज भी जब भी उनकी आवाज़ सुनता हूँ, आज घर में मुझे ऐसा लगता है गुरु मेरे मन में बसे हुए हैं। और गुरुबाणी में ये वचन भी गुरु ने दिया है, तीरथ नावण जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। मैं अरदास, 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 मैं